Vidyadhar Avadhote Mahavidyalaya. Then we have seen that last lecture this topic talking about the testes. Testes is a very important part of the male reproductive system. Then today's topic, the accessory duct, gland and external genitalia. तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था टेस्टिस का पार्ट देखा था, isn't it? Then टेस्टिस में आपने टीएस ऑफ टेस्टिस हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है? सर्टोलिसेस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. These are the seminiferous tubule. 200 to 300 lobules are present, but 1 to 4 seminiferous tubules are present, and these are the seminiferous tubules, and उसमें 5 सर्टोलिसेस है, उसके हेड में स्पर्म प्रेजेंट है. दैट इज द स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? सर्टोलिसेल, एंड दे कैन गेट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. देन नेक्स्ट इज द, हम लोग आज टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से हम लोगों ने टेस्टिस का पार्ट पढ़ा था, उसमें स्पर्म मैच्योर डेवलपमेंट हो चुके थे. अब बारी है स्पर्म को ट्रांसफर करने की, कैरी करने की. लेकिन वो कैरी कैसे होता है, कौन से किस किस ग्लैंड के थ्रू वो कैरी होता है, कैसे पेनिस में आता है, एंड दे कैन गेट आउट ऑफ द बॉडी, वो कैसे होता है. तो वन बाय वन हम आज देखने वाले. तो फर्स्ट इज द एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. ये जो नाम से इसके थ्रू हम जाने वाले हैं. तो एक्सेसरी डक्ट हम देखते हैं. तो एक्सेसरी डक्ट में फर्स्ट इज द रेटेटेस्टिस, सेकंड इज वास डिफरेंटिना, एंड थर्ड इज एपिडायनामिक्स, एंड फोर्थ इज वास differentina, and fifth is a ejaculatory duct, and sixth is urethra, and last is the uterus and urethra. हम urinary bladder के थ्रू जाने वाले हैं. Then retetestis means क्या होता है? All the seminiferous tubules or the testes at the posterior surface from a network of tubules called a retetestis. And then retetestis, it will pick up the seminiferous tubules. It will pick up the seminiferous tubules. तो यहाँ पे देखो, ये जो रेटेटेस्टिस है, यहाँ पे रेटेटेस्टिस है, तो ये रेटेटेस्टिस क्या करेगा? उसके इनर टेस्टिस में जो
is up to the abdominal cavity and वो कैरी करने के बाद कहाँ लेके जाएगा? ejaculatory duct pass through the, यहाँ पे ejaculatory duct है, इसको क्या कहेंगे हम? ejaculatory duct. The pass through the prostate gland and opens into the urethra. तो वो vasa differentium यहाँ से sperm पास करके ejaculatory duct में आएगा. कहाँ पे आएगा? ejaculatory duct में आएगा. Then ejaculatory duct में आने के लिए prostate gland and opens into the urethra. तो यहाँ पे prostate gland है, seminal vesicle है. तो ये vas differentium और ये seminal vesicle इसका दोनों का फ्यूजन होगा and वो sperm ejaculatory duct में जाएगा और ejaculatory duct यानी कि pass through the prostate gland and prostate gland के साथ वो कहाँ पे जाएगा? यूरेथ्रा में आएगा और उसका जो यूरेथ्रा का टिप पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा. ओपन होने के बाद वो स्पर्म कहाँ पे आएगा? यूरेथ्रा में आएंगे. तो इसके पहले हम सेमिनल वेसिकल क्या है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या है. These are the prostate gland and seminal vesicle. These are the seminal vesicle. It is the pair of glands side of urinary bladder. Side of urinary bladder. तो यहाँ पे देखो urinary bladder है, उसके साइड में two lobes present है यानी कि seminal vesicle. Seminal vesicle is the two pair, but prostate gland is the one pair. Single one is equal to single one. This is the prostate gland and two paired is the seminal vesicle. Then vas differentium, they carry the sperm. This is the seminal vesicle. It is a pair of gland side of urinary bladder. यानी कि urinary जो bladder है उसके दोनों भी साइड में seminal vesicle present यानी कि two paired है. Then it secrete an alkaline seminal fluid which is contain the fructose, phrybogen and prostaglandin. तो ये क्या है कि secrete वो जो seminal vesicle है उसके through sperm जाएगा तो तब वो seminal vesicle उसको क्या प्रोवाइड करेगा? क्या secrete कर रहा है वो? alkaline, fructose and phrybogens. ये जो enzymes है वो कौन secrete कर रहा है? seminal vesicle. Then it contributes about 60% of the total volume of the semen. तो ये क्या होता है कि ये enzymes जो है वो किसके थ्रू यानी कि वो अभी semen यानी कि whitish fluid जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आउट ऑफ बॉडी हो जाता है तो उसको कहेंगे हम semen. उसको क्या कहेंगे हम? semen. तो वो कौन डेवलप कर रहा है? seminal vesicle. Then fructose provide energy for sperm movement while phrybogens. तो यहाँ पे देखो जो उन्होंने सिक्रीट किया है एंजाइम्स फ्रुक्टोज एंड फ्राइबोजन तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म तो आ चुके हैं इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू द वासा डिफरेंटिया एंड सेमिनल वेसिकल का फ्यूजन होता है वहां पे तो स्पर्म आ चुके हैं तो उसको आप एनर्जी चाहिए और आगे जाने के लिए यानी कि मूवमेंट करने के लिए उसमें जान आने के लिए मूवमेंट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. वो कौन दे रहा है? सेमिनल वेसिकल थ्रू द fructose and phrybogens के through, isn't it? Then quick propulsion is the vagina. यानी कि उसके बाद वो vagina में एंट्री कर सकते हैं. Then reserve the peristetil is vagina and uterus, adding faster movement of sperm towards the egg in the female body. तो यहाँ पे क्या होता है जब ये एनर्जी उसको प्रोवाइड हो चुकी है यानी कि पूरी तरह एनर्जी मिलने के बाद वो मूवमेंट कर सकता है इधर उधर तो उसके बाद मूवमेंट की वजह से जब तक वो मूवमेंट करना नहीं सीख सकता मूवमेंट करना नहीं आएगा उसको तब तक वो फीमेल बॉडी में एंट्री नहीं कर सकता और एग तक वो नहीं पहुंच सकता. इसीलिए उसको यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है वो फ्रुक्टोज प्रोवाइड करे यानी कि एनर्जी उसको प्रोवाइड करे थ्रू द एंजाइम्स के थ्रू एंड वो उसके बाद अब वो मूवमेंट कर सकता है तो मूवमेंट की पोजीशन उसमें आ चुके तो स्पर्म टुवर्ड्स द एग इन द फीमेल बॉडी तो वो आप इजीली पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी में एंट्री कर सकते हैं और मूवमेंट कर सकता है. देन ये हो गए सेमिनल वेसिकल. आप देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है. अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सेमिनल वेसिकल. तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे देखो यहाँ पे these are the rated testes. These are the testes बस उसके इनर पोर्शन में यहाँ पे rated testes प्रेजेंट है. तो ये rated testes जो क्या करेगा वो पिक
the sperm, isn't it? तो सेमिनल वेसिकल तक अभी हम पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर स्पर्म आता है इजैकुलेटरी डक्ट तक यानी कि सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंटिना का फ्यूजन होता है और उसके बाद वो कैरी करता है इजैकुलेटरी डक्ट में। तो इजैकुलेटरी डक्ट में कैरी करने से पहले यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, तो वो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, उसको एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या करेगा वो? एंजाइम सिक्रीट करेगा, एंजाइम्स प्रोवाइड करेगा उसको, उस स्पर्म को, ताकि वो उसको एनर्जी मिले एंड मूवमेंट कर सके। इसीलिए वो सेमिनल वेसिकल उसको प्रोवाइड करता है। 60% सेमेन फ्लूइड वो सिक्रीट करेगा ताकि उसी के वो उस फ्लूइड के थ्रू वो पास हो जाए स्पर्म, इसीलिए, isn't it? Then अभी वो सेमिनल वेसिकल तो हो गया, उसका फंक्शंस एंड रोल हो गया। अभी देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। These are the prostate gland is a single gland made up of 20 to 30 लोब। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है बट वो सिंगल लोब है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल 2 लोब था बट यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पूरी तरह से सिंगल है। सिंगल वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, isn't it? Then urinary bladder surround the urethra and release a milky white and slightly acidic prostatic fluid into the urethra। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरी तरह यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके सराउंडिंग, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सराउंडिंग में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है एंड यूरेथ्रा है। एंड इसी के थ्रू, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू अभी ये जो सेमिनल वेसिकल में जो फ्लूइड डेवलपमेंट हुआ था, 60% फ्लूइड, व्हाइटिश फ्लूइड यानी कि मिल्की व्हाइट एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेट, ये जो सेमेन फ्लूइड सिक्रीट हो चुका था वो कौन प्रोस्टेट ग्लैंड में अब आएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में वो ट्रांसफर करेगा फ्रॉम अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेमेन। तो उसमें से 30% ऑफ वॉल्यूम वो कौन सिक्रीट करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। देन इट कंटेन्स द सिट्रिक एसिड एंड वेरियस अदर्स एंजाइम्स। तो ये क्या करेगा, कंटेन करेगा किसको, सिट्रिक एसिड एंड वेरियस अदर्स, जो अदर्स एंजाइम जो सेमिनल वेसिकल से जो एंजाइम्स आए थे वो कैरी करेगा। कौन करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। द कंटेन सिट्रिक एसिड एंड वेरियस अदर्स एंजाइम्स, यानी कि ये जो कंटेन यानी कि वो रिसीव करेगा एंड जो अदर्स एंजाइम्स है एंड सिट्रिक एसिड है जो सेमेन फ्लूइड में है, वो सेमेन फ्लूइड के साथ ही कहां पे एंट्री करे, वो यूरेथ्रा में। कहां पे एंट्री होगा, यूरेथ्रा में, बट किसके थ्रू, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू। यहाँ पे देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की पोर्शन में यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, उसी को हम कहेंगे कॉर्पस ग्लैंड। उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड। तो ये कॉर्पस ग्लैंड, दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में अब वो आ चुका है सेमेन फ्लूइड, तो उसमें ऑलरेडी स्पर्म प्रेजेंट है, तो अदर एंजाइम्स में भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, सिट्रिक एसिड कंटेन करेगा एंड ट्रांसफर करेगा थ्रू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से यूरेथ्रा में ट्रांसफर करेगा, isn't it? तो ये हो गया अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। देन एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड तक हम आ चुके हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, वो अब यूरेथ्रा में आ चुका है। ये जो स्पर्म कहाँ पे आ चुका है, यूरेथ्रा में आ चुका है। हम यहाँ तक पढ़े सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू सेमिनल फ्लूइड यहाँ तक पहुंच चुका है, कहाँ तक, यूरेथ्रा तक पहुंच चुका है। अभी हम इसको आगे ट्रांसफर करते हैं, isn't it? तो अब आएगा एक्सटर्नली जेनेटिलिया। अब क्या आएगा, एक्सटर्नली जेनेटिलिया। तो अभी हम इंटरनली भी बात कर रहे थे और एक्सटर्नली भी बात कर रहे थे। तो अब जो पेनिस वाला जो पार्ट है, ये जो पेनिस वाला पार्ट है, यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, इसके एक्सटर्नली बात करते हैं, हम एक्सटर्नली डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। देन एक्सक्रीटरी जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, three bundles of the erectile tissues। तो उसमें क्या है कि 3 bundles प्रेजेंट होते हैं इसमें। यहाँ पे देखो ये जो पेनिस का स्ट्रक्चर आपको नजर आए, यहाँ पे 3 bundles होते हैं। These are the first is the posterolateral tissues called corpus cavernosa and median corpus
First is the posterolateral tissues, and second one is the corpus spongineus, and third is the penis. First is the posterior lateral, third is the corpus spongineus, and थर्ड इज द फोरस्क्रीन यानी कि पेनिस, इसको कहेंगे हम फोरस्क्रीन। तो ये हो गई अपनी कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखो दीज आर द टेस्टिस, इजंट इट? दीज आर द टेस्टिस का पार्ट है। इसी में कहा क्या प्रेजेंट है? रेटाटेस्टिस। और रेटाटेस्टिस क्या करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को पिकअप करेगा एंड गेट इट ट्रांसफर टू द वास इफ्रंटिना, एंड वास इफ्रंटिना के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा? एपिडायनामिक्स में जाएगा, एंड दे कैन कैरी द वास इफ्रंटिना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड कि स्पर्म वाला जो पार्ट है वो कैरी करेगा और एपिडायनामिक्स में लेके जाएगा। एपिडायनामिक्स उसको मैच्योर्ड करेगा, मैच्योर्ड होने के बाद वहां पे वास डिफरेंटिना के थ्रू हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू द सेमिनल वेसिकल। तो वास डिफरेंटिना एंड सेमिनल वेसिकल का फ्यूजन होगा, एंड फ्यूजन होने के बाद सेमिनल वेसिकल्स में फ्रुक्टोज वो जो एंजाइम्स वो सिक्रेट करेगा सेमिनल वेसिकल, एंड 60% सेमेन फ्लूइड वो सिक्रेट करेगा। और उसके बाद सिक्रेट होने के बाद सिक्रेट किसके लिए करेगा? थ्रू द मूवमेंट। जो स्पर्म है उसको मूवमेंट करने के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा थ्रू द पर्टिकुलर एंजाइम्स, इजंट इट? फिर एंजाइम्स के बाद वो सेमिनल वेसिकल कैरी करेगा प्रोस्टेट थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओनली द सिंगल वन। देन प्रोस्टेट ग्लैंड secrete the citric acid and other enzymes, contain the other enzymes through the bulbourethral gland and carry through the bulbourethral gland यानी कि corpus gland। then उसके थ्रू वो कैरी करेगा from the urethra and opens the urethra, and यहाँ पे जो यहाँ तक आ गया वो bulbourethra तक, तो यहाँ से urethra को ओपन करेगा और यहाँ पे ग्लैंड ओपन करेगा और कहाँ पे आएगा? यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा का जो टिप पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा और पूरा सेमिनल फ्लूइड जो सेमेन फ्लूइड है वो कहाँ पे आएगा? यूरेथ्रा में आ जाएगा। यूरेथ्रा में आने के बाद वो हम ये जो पेनिस का स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट है। ओके, 3 लेयर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यूरेथ्रा में सेमेन फ्लूइड आता है। सेमेन फ्लूइड व्हाइटिश एंड मिल्की व्हाइटिश फ्लूइड होता है। देन यहाँ तक वो स्पर्म आएगा मैच्योर्ड हो गया। फिर उसके बाद वो सेमेन फ्लूइड के थ्रू बॉडी के आउट ऑफ थ्रू हो जाएगा, एंड वो ट्रांसफर एंड एंट्री करेगा फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में। क्यों? जब उसको अगर मूवमेंट करना नहीं आ सकता था वो, तो फिर वो फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में मूवमेंट नहीं कर सकता था, तो उसके बाद वो बॉडी के आउट ऑफ थ्रू हो जाएगा और फीमेल के जेनेटियल ट्रैक्ट में एंट्री करेगा। उसके बाद उसी मूवमेंट के थ्रू वो एग तक जाएगा, isn't it? तो ये हो गया अपना पूरी टोटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, isn't it? आई होप कि आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।